Good morning, students. Today we will read last chapter of supplementary books, Footprints Without Feet, chapter number 9, Bholi, which is written by K.A. Abbas. So, dear students, before starting this chapter, I want to tell you something about Mr. K.A. Abbas. K.A. Abbas is one of the most famous writer, or just we can say a famous novelist, who had written almost his compositions, short stories, which are related from our surrounding native places, which are very deeply connected with us, because in his stories main problems which we can feel, which we can understand easily, are deeply described. So K.A. Abbas beautifully describes here about a young girl whose name is Bholi. Actually, that particular girl which is mentioned here, her name was Sulaikha. But because of her behavior, because of her atmosphere, because of her nature, he was called Bholi by her parents, by her brothers, sisters and relatives. From starting, first, if I want to explain this chapter, तो मैं यहाँ पर अपनी एक बहुत पुरानी प्रोवर्ब्स, लोकोक्ति, as you can see here, अकेला चना भार नहीं फोड़ता. One swallow does not make a summer. अकेला, जब भी हम कभी बात करते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकते हैं. But this story is the contrast, absolutely contrast for this proverb, because in this chapter, in this story, we can see that how a dumb girl means a foolish girl, which was understood by her parents, by her relatives, by her brothers and sisters. She not only survived in this world by her education, by her confidence, but also she opposed. She took a good decision for her prestige points, for her self-respect, and she changed this understanding, a mutual understanding, a common understanding that girls cannot do anything. Because in this story हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं भी आपको जब ये स्टोरी पूरी डीपली बताऊंगा तो आप देख सकते हैं कि क्या ऐसा भी होता होगा. यस, डेफिनेटली ऐसा ही होता था. मैं चैप्टर एक्सप्लेन करने शुरू करता हूँ. चैप्टर की मैं समराइज आपको एक स्टोरी पहले मैं इसकी सुना देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए हमें किस किस लेवल पर क्या क्या चीज़ों के साथ फेस करना पड़ता है, कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, कहाँ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं. बट इफ वी आर रियली अवेयर अबाउट आवर सेल्फ रेस्पेक्ट एंड वी आर डिटरमाइंड विद राइट थिंग्स, देन वी हैव टू स्टैंड अप. We have to take a proper stand, strongly stand against the bad things.
So dear students, first we start introduction of this chapter. This story is about a girl who is ugly and stammers. ये जो कहानी है ये एक छोटी लड़की की है, उसका नाम सुलेखा है, जिसको प्यार से भोली बोलते हैं सब. And she is ugly and stammers. Why she is ugly? Why she stammers? So here is the reason. Because जब वो छोटी बच्ची 10 महीने की थी तो अपने घर में अपनी चारपाई से, अपने खाट से, अपने बेड से नीचे गिर गई और ये समझा जाने लगा कि उसके सर के किसी भाग में कोई चोट लगी है. सो वो भोली है, बुद्धू है जिसको हम बोल सकते हैं. एंड अगली, व्हाई शी कॉल्ड अगली हियर? बिकॉज व्हेन शी वाज 2 years old, 2 years old, she has suffered with this problem, pock marks, जिसको हम बोल सकते हैं चेचक. ये एक चिकन पॉक्स की तरह एक बीमारी होती थी पहले, चेचक का जिसको बोलते थे. तो इसमें शरीर पर जगह जगह काले निशान हो जाते थे जो कि लाइफ टाइम रहते थे, डार्क डीपली आपकी बॉडी में. तो ये जो छोटी लड़की बहुत सुंदर थी, 10 महीने की जब थी तब ये चारपाई से या बेड से गिर गई, इसके सर में लगी. 2 साल की जब ये लड़की हुई तो इसे पॉक मार्क्स, चेचक की बीमारी हुई, जिससे इसके आंखों को छोड़कर बाकी शरीर पर काले धब्बे बन गए, निशान हो गए, जिसके कारण से इसे अगली कहा गया. As she is different from her siblings in her family, she had 3 brothers and 3 sisters. उसके परिवार में उसके 3 भाई और 3 बहनें थी. तो as she is different, क्योंकि वो बिल्कुल अलग थी, from her siblings, अपने भाई बहनों से, she does not get proper care in her family. उसकी कभी भी प्रॉपरली केयर नहीं की गई. नाउ कैन यू फील, कैन यू इमेजिन दिस, दैट इन ए फैमिली इफ देयर आर 7 kids, so how one of them is going to be neglected by her parents, by her brothers and sisters, siblings. So this particular girl, ये एक लड़की इस प्रॉब्लम को भी फेस कर रही है कि उसके जो माता पिता हैं, उसके जो दोस्त हैं, वो उसे उतना केयर नहीं दे रहे हैं जितना उनके सिबलिंग्स, उसके भाई बहनों को दिया जाता है. इवन इन दिस चैप्टर इट इज रिटन दैट ही ऑलवेज वोर द ओल्ड क्लॉथ्स ऑफ हर सिस्टर्स. पुराने उसके जो कपड़े होते थे जो वो पहनती थी, वो एक्चुअली में उसके लिए नहीं होते थे, वो उसकी बहनों के होते थे, जो पुराने होते थे उसको पहना दिए जाते. कभी भी उसको प्रॉपर्ली एक बात नहीं दिया जाता, कभी भी उसके बालों में ऑयलिंग नहीं की जाती. बिल्कुल एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड जिसको हम बोल सकते हैं, जिस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया. अब एक छोटा सा बच्चा जो 10 महीने की उम्र में एक एक्सीडेंटल प्रॉब्लम को सफर कर रहा है, 2 साल की उम्र में जिसको पॉक मार्क्स हो गया था, और 5 years की उम्र में जिसने पहली बार बोलना सीखा था. इस लड़की भोली ने जब ये 5 साल की थी तो पहली बार शब्द बोले थे, वो भी हकलाते हुए, स्टैमरिंग. तो यहां पर हमें पता चलता है कि ये स्पेशल चाइल्ड जिसको हम बोल सकते हैं, रिटार्डेड चाइल्ड जिसको बोल सकते हैं, जिसको बड़ी केयर की जरूरत थी, वो बच्ची थी. एंड एवरीवन इज गोइंग टू नेग्लेक्ट हर. हर कोई इसे इग्नोर करता जाता है, इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसकी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो ऐसे बच्चों को ज्यादा प्यार की जरूरत होती है. डियर स्टूडेंट्स, यहां मैं इस कहानी को कोरिलेट करूं अगर, तो यहां पर एग्जैक्ट वो जो सिचुएशंस हैं, वो जो एटमॉस्फेयर है, वो ऐसा नहीं है, बट समथिंग अगर हम कहीं ना कहीं
एक पेरेंट्स की बात करें कि बच्चे को किस लेवल पर उन्हें केयर करना चाहिए या उन बच्चों की नीड्स को समझने की जब जरूरत होती है, तो यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी मूवी का एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, तारे जमीन पर। उस मूवी में भी आपने देखा होगा किस तरीके से रिहान को जरूरत थी, बट उसको प्रॉपरली वो गाइडेंस उसके पेरेंट्स से नहीं मिलता। हालांकि उस मूवी में उसकी जो मम्मी थी उस बच्चे को समझती थी, बट उसके फादर उसकी भावनाओं को नहीं समझते थे, उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझते थे। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही था। हर फादर सेंड्स हर टू ए स्कूल बिकॉज ऑफ ए कमांड फ्रॉम द तहसीलदार। अब देखिए यहां इसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है। जब वो लड़की 7 साल की थी, भोली, जिसका नाम वास्तविक नाम रियल नेम सुलेखा है, when she was 7 years old, at that time in her village Tehsildar Sahab came and by गवर्नमेंट की तरफ से उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया, क्योंकि उसके जो फादर थे, भोली के जो फादर थे, वो उस गांव के नंबरदार थे, रामलाल यहां पर भोली के फादर जो कि नंबरदार थे, तो उनको भी इनवाइट किया गया और तहसीलदार साहब ने उन्हें कमांड दिया, रिक्वेस्ट मान लीजिए या ऑर्डर मान लीजिए कि भाई देखो रामलाल, तुम्हारे गांव में स्कूल खोल दिया गया, राइट। अब जब तुम अपनी बच्चों को भेजोगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे, तो बाकी लोग भी भेजेंगे, तो कल से आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजो ना। यहां भोली की लाइफ का टर्निंग पॉइंट देखिए कि भोली के फादर भोली की मम्मी से डिस्कस करते हैं और भोली की मम्मी जवाब देती है कि देखो तहसीलदार साहब को तो जो बोला है वो बात माननी पड़ेगी, तो हम एक काम करते हैं, हम स्कूल में भोली को भेज देते हैं, क्योंकि उसकी वैसे भी शादी होने के चांसेस बहुत कम है। उसकी बाकी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, बाकी बच्चे जो थे वो पढ़ रहे थे, क्योंकि वो सुंदर थी, लेकिन इसलिए उन्हें एजुकेशन नहीं दी गई थी। यहाँ एक और मेन कॉन्सेप्ट देखना होगा, हमें समझना होगा, क्योंकि वो दोनों उसकी जो बहनें थी वो बड़ी सुंदर थी, इसलिए उन्हें एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए इजीली लड़के मिल जाएंगे। और क्योंकि उस समय रामलाल नंबरदार था, तो वो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में भी था, तो उसने इजीली जो भी दहेज वगैरह होता है वो देकर उनकी शादी अच्छे घरों में कर दी थी। बट क्योंकि भोली की शादी होने के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए भोली को स्कूल में भेजा गया, केवल इस कॉन्सेप्ट को लेकर, इस चीज को लेकर कि इसकी शादी होने के कोई चांसेस नहीं है, इसको स्कूल में भेज दो, वैसे भी यहाँ कुछ नहीं करती है, वहां कुछ अपने हिसाब से करेगी और हमारी बात भी रह जाएगी, तहसीलदार साहब हमसे नाराज भी नहीं होंगे, और ये वैसे भी पढ़ लिख कर क्या करेगी, क्योंकि ये तो बेवकूफ है, इसको कुछ पढ़ना नहीं है, इसको कुछ समझ में आना भी नहीं है। बट अब यहां से भोली की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। भोली की लाइफ का टर्निंग पॉइंट देखिए कि भोली जब फर्स्ट डे स्कूल जाती है, तो स्कूल जाने से पहले की प्रिपरेशन उसको, क्योंकि स्कूल जा रही है, गांव के नंबरदार की बेटी है, तो सब लोग देखेंगे, टीचर्स देखेंगे, बच्चे देखेंगे कि कैसे एक गंदी अवस्था में रह रही है, तो उसे नहलाया जाता है, उसके बालों में ऑयलिंग की जाती है, उसे एक प्रॉपर ड्रेस दिया जाता है। ये सब कुछ पहली बार हुआ उसके लिए, और वो बड़ा डरी हुई थी, सहमी हुई थी वो बच्ची। क्यों डरी हुई थी, क्यों सहमी हुई थी वो बच्ची? क्योंकि इससे पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। और इससे कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था। एक इंसिडेंट क्या हुआ था कि उसके घर में जो एक प्यारी सी गाय थी, उस गाय और उसके बच्चे को भी भेजा गया था। तो उसको जब ले जाया गया था, तो वो उसके माइंड में एक सेट हो गया था, एक उसका इमेज कि मुझे भी शायद हो सकता है कि अब घर से दूर किया जा रहा हो। तो इस डर से बच्ची और डर गई, वो रो रही है, वो हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी मदर उसे डांटते हुए नहला रही है, उसके कपड़े चेंज कर रही है, उसको उसके बालों में ऑयलिंग कर रही है। तो उसे उसके लिए बड़ा डरावना था, उसे ये लग रहा था कि शायद हो सकता है मुझे भी अब घर से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। सेकेंड, जब वो बच्ची स्कूल जाती है, बोली जब स्कूल जाती है, तो स्कूल में देखती है कि उसके जैसे ही छोटे छोटे बच्चे उसकी उम्र के रूम्स में बैठे हुए हैं, क्लासरूम्स में बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उसे बुक्स
बड़ी फैसिनेटिंग लगी, उसे बड़ी आकर्षित कर रही है वो चीजें बुक्स में, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता है, बट शी कैन सी द ड्राइंग्स, पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स जस्ट लाइक पैरट, काउ, गोट एटसेट्रा। ये सब पिक्चर्स, तस्वीरें उसे कहीं ना कहीं जानी पहचानी लगी। फर्स्ट डे इन द स्कूल व्हेन हर टीचर came there and she asked about her name, so she was, because क्योंकि वो डरी हुई है, she was very feared of with all new things। तो यहाँ पर वो बच्ची थोड़ी डरी हुई, हल्की सी हकलाते हुए, स्टैमरिंग, क्योंकि ये उसकी प्रॉब्लम थी, वो हकलाते हुए अपना नाम बोलने की कोशिश करती है, भो भो भो, लेकिन बोल नहीं पाती है, क्योंकि उसे डर था कि सब बच्चे उस पर हंसेंगे, कोई उसके साथ खेलेगा नहीं, टीचर उसके बारे में क्या सोचेगी। बट टीचर ने यहाँ पर, उसकी टीचर ने उसे बड़े प्यार से थपथपाया, उसे कहा कोई बात नहीं, यू कैन डू इट, लेकिन वो नहीं बोल पाए। बाद में उसे बुक्स दी गई, उसे कंफर्ट करने के लिए वो कुछ देर उस रूम में बैठी, बुक्स की पिक्चर्स को देखने लगी, और उसे वो सारी चीज़ें याद आने लगी कि ये पिक्चर्स उसके जैसी है, इसमें दिखने वाली गाय ऐसे लग रही है, उसकी बकरी वैसे है। तो वो सब, क्योंकि उसके लिए फर्स्ट डे था, और अब धीरे धीरे वो अपने आप को उस कंफर्ट जोन में लेकर आ पा रही थी जहां उसे होना चाहिए था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम when she was feeling very comfortable, she was feeling very happy. From next day she started to go in the school regularly. अब उसकी टीचर ने उसको प्यार से जब उसका कॉन्फिडेंस गेन किया, उसके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए, यस बेटा व्हाट्स योर नेम बताओ, तो उसने पहली बार फिर से कोशिश की, ब ब ब, और फाइनली उसने अपना नाम बताया, भोली। उसकी टीचर ने उसे शाबाशी दी और धीरे धीरे उसे पढ़ाने लगी, और यहाँ से भोली अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने लगी। अब धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस आने लगा और वो चीज़ों को समझने लगी, पढ़ने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वो छोटा सा गांव, एक जहाँ पर एक छोटी सी कुछ फैसिलिटीज हुआ करती थी, वो चेंज हो गया क्योंकि टाइम बदलता जाता है। गांव का जो नंबरदार था रामलाल, उसका पिता, वो अब ओल्ड एज में आ चुका है, वृद्ध हो चुका है, बट भोली अब बड़ी हो गई है। और फाइनली एक दिन भोली के माता पिता रात को जब डिस्कशन कर रहे होते हैं, भोली भी अपने कमरे से उनकी बातें सुन रही होती है, तो भोली के पिता भोली की माँ को बोलते हैं कि तो क्या मैं बिशंबर लाल का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं। अब यह बिशंबर लाल जो है वो एक ऐसा इंसान है जिसकी पहली पत्नी मर चुकी है, जिसके बच्चे काफी बड़े हैं, पैर से लंगड़ाता भी है, और सबसे बड़ी बात है कि बिशंबर लाल जिसको भोली के लिए एज ए हस्बैंड चुना गया है, वो उसकी उम्र से लगभग बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि रामलाल की उम्र का हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर भोली की माँ कहती है कि बिल्कुल उसे हाँ कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो यहाँ पर भोली के दहेज के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, और जो बिशंबर है वो इतने पैसे की डिमांड भी नहीं कर रहे, उसको कोई दहेज चाहिए भी नहीं। दूसरा, क्योंकि भोली इतनी सुंदर भी नहीं है कि कोई उससे शादी करे, तो ये एक अच्छा सुटेबल प्रपोजल लगा उन्हें, और उन्होंने फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लिया। एक फिक्स दिन को फाइनलाइज किया गया कि भाई इस दिन भोली की शादी की जाए। भोली ने उस डिसीजन को, उसके माता पिता के डिसीजन को अपोज नहीं किया, उसने मान लिया उनकी बात को, ना उससे पूछा गया, ना उसने कोई बात उनके खिलाफ बोली। लेकिन जब शादी का दिन आया, तो जब दूल्हा गेट पर पहुंचा, दुल्हन को लाया गया, जब दुल्हन दूल्हे के गले में माला डालने वाली थी, तो दुल्हन की किसी दोस्त ने उसके सर से घूंघट थोड़ा सा हल्का सा खींच लिया, और बिशंबर लाल की नजर भोली पर पड़ी, और उसने देखा कि भोली के चेहरे पर पॉक मार्क्स,
चेचक के निशान है। और यहां पर बिशंबर लाल के अंदर का जो शैतान था, जो लालच था, वो जागा और उसने कहा कि भाई मुझसे धोखा हुआ है, मुझसे चीटिंग की गई है, कि इसके चेहरे पे तो काले निशान है, धब्बे हैं, मैं इस लड़की से शादी क्यों करूं। तो उसके किसी दोस्त ने उसे समझाया भाई कि तुम कौन सा जवान हो भाई, और वैसे भी तुम लड़ाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि सिचुएशन का एडवांटेज लेना बिशंबर लाल को पता था, तो बिशंबर लाल ने डिमांड की, नहीं, अगर मुझे 5,000 रुपए मिलेंगे दहेज में तो ही मैं भोली से शादी करूंगा। अब अचानक से इतनी धनराशि को सुनकर, इतनी अमाउंट को सुनकर सबके चेहरे लाल हो गए, सब परेशान हो गए कि क्या करें। भोली के पिताजी ने बिशंबर लाल से रिक्वेस्ट की, लेकिन बिशंबर लाल अपनी शर्त पर अड़ा रहा। एनी हाउ भोली के पिता ने वो अमाउंट मैनेज की। देखिए यहाँ पर कितनी इस सोसाइटी की कितनी प्रॉब्लम्स हैं, इस सोसाइटी में कितनी प्रॉब्लम्स को सफर करना पड़ता है एक लड़की को। पहली चीज, बिकॉज शी इज ए गर्ल, तो उसको कोई केयर नहीं की जा रही है। दूसरा, क्योंकि वो सुंदर नहीं है, थोड़ा सा स्टैमरिंग प्रॉब्लम है, तो उसको घर पर इतना प्यार नहीं मिल रहा है। थर्ड, क्योंकि वो ज्यादा सुंदर नहीं है, इसलिए उसकी शादी किसी भी एज की उम्र के इंसान से की जा रही है विदाउट हर परमिशन, विदाउट हर सहमति, राइट। और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम है कि उसका जो होने वाला पति है वो लंगड़ाता भी है, उससे उम्र में काफी बड़ा भी है, ज्यादा सुंदर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे दहेज चाहिए, डाउरी। ये सभी सामाजिक बुराइयां हैं जिनको हम कहते हैं कि सोशल एविल्स। और इन देखिए यहां पर मैं फिर से एक बार आपको चैप्टर के जो ऑथर हैं, राइटर हैं के.ए. अब्बास, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। के.ए. अब्बास ने इन सभी सामाजिक बुराइयों को कहीं ना कहीं हमारी कॉमन लाइफ से जोड़ते हुए कहानियां लिखी हैं, जिससे हम लोग उन सब चीजों के बारे में जान पाए कि कितनी सामाजिक बुराइयों को हमें झेलना पड़ता था समाज में। धीरे धीरे इन सब में केवल और केवल जो चेंजेस आया वो एजुकेशन के थ्रू। पहले एजुकेशन नहीं होती थी, लेकिन अब एजुकेशन पहले भी होती थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, इतने अवेयर नहीं थे पेरेंट्स भी, बच्चे भी। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे सब में अवेयरनेस आई है, तो एजुकेशन, केवल और केवल एजुकेशन के कारण से हमने कितनी प्रॉब्लम्स को दूर कर दी है। तो यहां पर जब भोली की शादी की फाइनली बात हो गई, वहां पर एनी हाउ भोली के पिता ने वो अमाउंट मैनेज कर दी। बिशंबर लाल बड़ा खुश था अपनी इस जीत पर कि मैंने शादी तो हो ही रही है, साथ में मैंने 5,000 की बड़ी एक रकम, क्योंकि उस समय पे अमाउंट बहुत ज़्यादा थी, 5,000 रुपये उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और रामलाल इस पोजीशन में नहीं था अब कि वो इतनी बड़ी अमाउंट अरेंज कर सके, फिर भी उसने एनी हाउ अरेंज की। और जब वो अमाउंट जब उसको देने के लिए तैयार हुआ, तब अचानक से, अब यहाँ पर बिल्कुल चेंजिंग पॉइंट देखिए, एक डरी सहमी सी लड़की जो अपना नाम बताते हुए हकलाती थी, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसको सभी लोग बुद्धू समझते थे कि ये बेवकूफ है, ये कुछ नहीं कर सकती है। एट दैट टाइम सडनली भोली रिफ्यूज्ड टू गेट मैरिड विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। भोली ने स्ट्रांगली, बिल्कुल साफ मना कर दिया कि इसके पैरों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है, इसे ये अमाउंट देने की कोई जरूरत नहीं है, वो इस इंसान से शादी नहीं करेगी। भोली के रिश्तेदार, भोली के माता पिता, वहां शादी में आए हुए गेस्ट, सभी शौक थे। सबको लगा अचानक से कि ये क्या हुआ, कैसे एक गूंगी गाय से मतलब यहाँ पर जिसको हम भोली समझते थे, जो बिल्कुल चुप रहती थी, डरी रहती थी, कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले सकती है। बट एट दैट टाइम भोली से कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, ऐसे लालची इंसान के साथ मैं शादी नहीं करनी है। भोली के पिता ने भोली को समझाने की कोशिश की, रिश्तेदारों ने भला बुरा कहा, लेकिन भोली ने
कुछ नहीं जवाब दिया, केवल और केवल ये कहा कि मुझे आपकी इज्जत और मेरी इज्जत भी उतनी ही प्यारी है, मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी। तो भोली के पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा अगर तुम अब शादी नहीं करोगी तो फिर तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन की शादी के लिए सब लोग रेडी हैं, दूल्हा बारात लेकर दरवाजे पर खड़ा है और फिर बारात वापस लौट जाए, तो ये उस समय की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती थी कि यहाँ पर सारा ब्लेम उस लड़की को किया जाता था। तो लड़की ने कहा कि जब भोली के पिता ने लड़की से कहा या भोली से कहा कि बेटा अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, फिर तुम क्या करोगी, जिंदगी भर थोड़ी बैठे रहोगी। तो उस समय भोली ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि पिताजी मैं आपकी बुढ़ापे में आपकी और मम्मी की सेवा करूंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी, जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी और मैं उसी स्कूल में एज ए टीचर काम करूंगी जहां मैंने ये सब चीजें सीखी है। देखिए एजुकेशन ने कितना बड़ा पॉइंट ला दिया, कितना चेंजेस ला दिया यहाँ पर कि एक डरी सहमी सी लड़की जिसमें कॉन्फिडेंस तो छोड़िए वो अपना नाम तक बताते हुए अकलाती थी, आज उस लड़की ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। तो यहाँ पर अब जब उसने अपनी टीचर की तरफ देखकर पूछा कि मैडम क्या मैं ये कर सकती हूँ, तो मैडम ने कहा बिल्कुल आप ये कर सकते हो। अब मैडम की उसकी टीचर के चेहरे पे वो ही स्माइल थी, वो ही सेटिस्फैक्टरी फीलिंग्स थी जो किसी आर्टिस्ट के, जब कोई आर्टिस्ट अपनी किसी मास्टरपीस को कंप्लीट करता है और उसके बाद उसमें जो सेटिस्फैक्टरी फीलिंग्स आती हैं कि यस जो मैं करना चाहता था मैंने किया, ये चेंज मैं लेके आई, तो वही फीलिंग्स, वही सेटिस्फैक्टरी फीलिंग्स, वही प्राउड फीलिंग्स इस समय उसकी टीचर के चेहरे पर थी। और इस तरीके से सुलेखा ने अपने नाम को प्रॉपरली प्रूव कर दिया कि यस शी कैन डू एनीथिंग only with the help of her teacher and education. So dear students, here we can see that what is the importance of education in our life. कैसे हम एक सपोर्टिव, एक अच्छे टीचर की हेल्प से हम अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं और इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। कितनी टिपिकल सिचुएशन से जो भोली थी वो गुजरी थी हम समझ सकते हैं। और उस टाइम पीरियड पर जब लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं थी, जब लड़कियों को इतनी चॉइसेस नहीं थी कि उन्हें एजुकेट किया जाए, उन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएं, तो उस समय पर इस तरीके से भोली ने अपने आप को स्टेबल किया। सो the teacher in the school becomes the true mentor of Bholi and helps her gain some confidence. रियल में टीचर जो थी वो ही उसकी लाइफ को चेंजेस करने वाली एक मेंटोर बनी और उसी के कारण से भोली ने अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस को गेन किया। टाइम फ्लाइज एंड विद दैट भोली, टाइम समय उड़ता चला गया एंड with that उसी के साथ भोली becomes a young woman who is educated. भोली भी बड़ी हो गई और जो कि एक एजुकेटेड थी। Unlike her sisters, उसकी बहनों से बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि उसकी बहनों की तो बहुत सुंदर थी तो उनको एजुकेशन की जरूरत ही नहीं थी, उनकी तो शादी इजीली हो जाएगी। तो उसकी बहनें बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो अब पढ़ी लिखी थी। Because of her ugly looks and pockmarked face, her father agrees to marry her off to a person who is double her age. अब क्योंकि उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं, इसलिए उसके पिता उसकी शादी उसकी उम्र से दुगनी उम्र के एक लड़के के साथ करने को तैयार हो गए। भोली एग्रीज विद हर पेरेंट्स डिसीजन, भोली फिर भी अपने पेरेंट्स के डिसीजन से एग्री हो गई। But when the bridegroom arrives, लेकिन जब दूल्हा पहुंचा, he demands a hefty dowry to marry her. बहुत भारी रकम उसने मांगी दहेज में उसे शादी करने के लिए। Her father somehow manages, उसके पिता ने किसी तरीके से मैनेज किया that money, उस अमाउंट को। Bholi is aghast at this development and decides to rebel against all.
भोली इन सब चीजों से बड़ी सरप्राइज थी, बड़ी शौक थी, और उसने बिल्कुल अपोज कर दिया इन सब चीजों के खिलाफ कि नहीं, ये सब चीजें गलत हैं। She decides to spend rest of her life in serving her parents and teaching in the school। और उसने डिसाइड किया कि अपनी पूरी लाइफ को अपने माता पिता की सेवा करेगी और अपने टीचर्स के साथ उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां वो पढ़ती थी। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम वापस से मैं आपको इसी प्रोवर्ब पे लेके आता हूं। वन swallow डज नॉट मेक ए summer, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो देखिए कैसे भोली ने इस प्रोवर्ब को, इस लोकोक्ति को गलत साबित किया। केवल और केवल अपनी एजुकेशन के कारण से, अपनी एजुकेशन से जो उसे कॉन्फिडेंस मिला उसके कारण से। तो कोई भी अच्छी चीज की शुरुआत अगर हमें करनी हो तो हमें कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। दूसरा, हमें हमेशा एजुकेशन, देखिए एजुकेशन क्यों जरूरी है ये अब आप सबको पता चली गया है, वैसे भी आप लोग जानते हैं, समझदार हैं। थर्ड, थ्रू दिस चैप्टर मैं सबको, आप सभी स्टूडेंट्स को एक मैसेज क्लियरली कन्वे करना चाहता हूं। यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता को बिल्कुल बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहिए और ग्रेटफुल आपको होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि आपके माता पिता जानते हैं, उन्होंने वो टाइम पीरियड देखा है। या हम ये बोले कि आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आपके रिलेटिव्स या आप अपने मम्मी पापा से इस टाइम पीरियड के अगर बारे में डिस्कस करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कितनी एंटी सोशल एक्टिविटीज हम इनको बोल सकते हैं कि होती थी, और जिसके कारण से स्पेशली गर्ल्स को सफर करना पड़ता था। तो आप लोग बड़े लकी हैं, यू आर वेरी लकी दैट यू हैव सच टाइप ऑफ पेरेंट्स हु आर वेरी अवेयर for your education, for your career, for your life. So it's our moral duty to thank them, and I hope after this chapter you will thank to your parents personally, and उनसे कभी डिस्कस करना आप लोग कि हाउ यू आर लकी कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले जो आपको समझते हैं, जो आपके लिए इतना डेडिकेटेड हैं, जो इतनी सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर चैप्टर भोली, चैप्टर नंबर 9। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर इन डाउट क्लास। क्लियर? So read this chapter and have a nice day. Stay at home, be safe, and please focus on your study. Thank you. Have a nice day.